اگر میرے محترم ویورز کے سامنے غلام محی الدین کا نام لیا جائے تو وہ شاید نہ پہچان پائیں، لیکن جب ہم نام لیں عالمگیر کا تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک بہت بڑی شخصیت آ جائے گی۔ یہ عالمگیر کا اصل نام تھا، غلام محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، یہ ان کا نام تھا۔ وہ گزر چکے۔ جب وہ گزرے تو ان کے بارے میں انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جوں عالمگیر بوڑھے ہوتے گئے توں مغلیہ سلطنت بھی بوڑھی ہوتی گئی، ان پہ زوال آتا گیا مغلوں پہ۔ اب یہ قصہ ہے آخری دنوں کا، مغل دور کا آخری زمانہ تھا، جب دہلی کا دربار بس رقص و سرور، ناچ گانوں کی محفلوں کی اماج گاہ بن چکا تھا، اور اس دربار میں رقاصوں اور طوائفوں کی اہمیت اور شان و شوکت دربانوں اور درباریوں سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو اسی دور میں مغلوں کا ایک بدنام زمانہ بادشاہ جس کا نام محمد شاہ رنگیلا تھا، وہ ان رقص و سرور کی محفلوں کا شیدائی تھا اور بہت سی رقاصوں اور طوائفوں کا عاشق تھا۔ انہی میں ایک مشہور رقاصہ میڈم لال کور کے نام سے بھی مشہور تھی، جس پر محمد شاہ رنگیلا سب سے زیادہ عاشق تھا۔ ہر روز لال کور اپنی اداؤں کے جلوے محفل اور تنہائیوں میں دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ رقاصہ محمد شاہ رنگیلے کی لاڈلی رقاصہ اور طوائف تھی۔ ایک دن لال کور اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی، جام پر جام چھلک رہے تھے کہ جوش میں محمد شاہ رنگیلے نے رقص کرتی ہوئی لال کور پر اس دور میں 500 اشرفیوں کی ویل کراتے ہوئے کہہ دیا کہ کاش میں پورے ہندوستان کی بادشاہت تم پر وار دوں۔ وہ سمرقند اور بخارا جو شیرازی نے محبوب کے تل کے نام کر دیا تھا، زر، زن اور زمین، تم پر وار دوں، جس پر ایک دربان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم حیران ہیں کہ ایک طوائف کو اس دربار میں وہ مقام دیا جا رہا ہے جو بڑے بڑے صاحبان کو بھی نصیب نہیں۔ اس بات پر بجتے ساز یکدم رک گئے، چھلکتے جام گر گئے اور تھرکتے بدن ساکت ہو گئے، اور محمد شاہ رنگیلے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ رنگیلے نے فوراً حکم دیا کہ حد ادب، گستاخ، تم نے میری نور نظر کی گستاخی کی، اور دربانوں کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو، جس پر وہ گستاخ دربان چیخ اٹھا اور بولا، رحم کیجئے عالی پناہ، رحم، لال کور کے صدقے جان کو بخش دیجئے۔ جب دربان نے لال کور کا صدقہ دیا تو رنگیلا نرم پڑ گیا اور بولا کہ اپنی محبت کے صدقے معاف کیا، لیکن اس شخص کو دربار سے دھکے دے کر نکال دیا، اس کی ساری جاگیر ضبط کر لی اور اس کو دہلی شہر سے 12 پتھر کر دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور کہا کہ آئندہ یہ شخص نہ تو شاہی دربار میں قدم رکھے گا اور نہ ہی دہلی میں۔ نسیم شاہ کو ایک بے ضرر سی ٹویٹ پر 2 کروڑ جرمانہ کر دیا گیا، جو کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا جرمانہ ہے۔ دونوں میں مماثلت محض اتفاقیہ ہوگی، کیونکہ ہم کھیلوں نہیں رکھیلوں کے دور میں جی رہے ہیں۔ رکھیلوں کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو جمہوریت ہے وہ رکھیل ہے۔ آپ دیکھیں تو آپ کی جو پارلیمنٹ ہے
وہ رکھیل ہے، آپ کی جو عدلیہ ہے وہ رکھیل ہے، آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ رکھیل ہے، اور کوئی ادارہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ رکھیلوں جیسی خدمت اور لال کور جیسا ناچ رہا ہے، جام چڑھائے جا رہے ہیں، بدن تھرک رہے ہیں اور چھاتیاں پکڑ کر سیڑھیاں چڑھی جا رہی ہیں، تو ہم کھیلوں کے نہیں کھیلوں کے دور میں بدقسمتی سے جی رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 1 اپریل 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ آج کے دن کا دوسرا آمنا سامنا، دوسری گپ شپ، کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ آج ہی ہمیں ایک PR پیکج موصول ہوا ہے اترے شین والوں کی طرف سے، ان کا تہ دل سے بہت شکریہ۔ لیکن آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک میٹھا، ٹھنڈا اور لانگ لاسٹنگ پرفیوم یا عطر سپرے انجوائے کرنا ہے تو آپ عطر شین کو لازمی آزمائیں۔ یقین کریں کہ اس قیمت میں اتنی پیاری خوشبو میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ آپ اس کو آزما سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے، ٹک ٹاک کا بھی اور ان کا اپنا بھی، کمپنی والوں کا، لیکن یہ کہ بہت زبردست ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ کریں یا نہ کریں، لیکن میرے خیال میں اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ بہترین گفٹ اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں۔ دوسری گزارش، میرا ایک پوتا لگتا ہے، پوتا، اس کا نام ہے عبدالہادی، اس کا بہت زبردست چینل ہے ہادی گیمنگ۔ جن کو گیموں سے ذرا سی دلچسپی ہے نا، ذرا سی، وہ یہ چینل وزٹ کریں۔ یہ بھی بچہ بہت پیارا ہے، مجھے ویسے بھی پیارا ہے، بہت پیارا ہے، شکل سے بھی بہت پیارا ہے اور کام بھی بہت پیارا کرتا ہے۔ اس کو آپ لوگ لازمی ٹچ کریں۔ اس کا بھی پن اپ ہے، میری ڈسکرپشن میں لنک اس کا پن اپ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ خاص کر جو میرے نوجوان ساتھی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ بڑا انجوائے کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت چھوٹا بچہ ہے اور بہت ہی کیوٹ بچہ ہے، یعنی کیوٹنس جو ہے نا وہ اینڈ ہے اس بچے پہ۔ آپ اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں۔ اب ہے تیسری درخواست، وہ یہ کہ میری ایک بہن ہے کینیڈا میں، وینکور میں، اور نام ہے ان کا ڈاکٹر شبانہ فیاض، یعنی شبانہ فیاض، فیاض سے بھی ظاہر ہے جتنی فیاضی سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا رمضان میں، نہ میں نے اس پیاری اور محترم بہن کو دیکھا، نہ ان سے بات کی، لیکن جتنی انہوں نے میرے لوگوں کی رمضان میں خدمت کی، ویسے سپورٹ کیا، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا گھر ہنستا بستا رکھے، اللہ پاک ان کے بچوں کو رائٹ ڈائریکشن میں رکھے، اللہ پاک ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی ایمان میں، ان کی عمر میں برکت ڈالے، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میری بہت پیاری اور بہت معزز بہن ڈاکٹر شبانہ فیاض، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ فیاض بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ آپ بہت فیاض ہیں، آپ سخی ہیں، آپ بڑے دل کی مالک ہیں۔ اور جو تیسری گزارش ہے وہ یہ کہ ہر طرح سے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل کو، اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ویڈیو پوری جو ہے وہ دیکھنے کی، سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، آج ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی قوم سے بہت اہم خطاب کرنا ہے، اور جو مبصرین ہیں وہ اس خطاب کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو مقبولیت ہے
वो गिर गई है 66%। और मैंने आपको बताया कि अमरीकी तारीख में इतना गैर मकबूल, इतना लफंडर, इतना गैंगस्टर जो सदर है वो पहले नहीं आया, यानी जिसकी मकबूलियत वो जमीन बोस हो चुकी हो। बड़े धूम धड़के से लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए, डेमोक्रेट्स को रिजेक्ट किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुल खिलाए वो आपके सामने है। तो आज खिताब में कहा जा रहा है कि वो अचानक ऐलान कर सकते हैं कि हम ईरान जंग बंद कर रहे हैं, क्योंकि मार्को रूबियो के दस्तखत से जो फाइल लीक हुई है, जो केबल लीक हुई है, तो मार्को रूबियो ने, सेक्रेटरी खारजा ने एतराफ किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जंग जीत गया है, ईरान बयानिए की जंग जीत गया है, और 86 साल का जो इत्तेहाद था यूरोपियन के साथ, वो इत्तेहाद भी अमेरिका का पारा पारा हो गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो भी इसी से मुतल्लिका है। जिस तरह मैंने यूरोप के इत्तेहाद का कहा, फ्रांस ने हिम्मत की है। वैसे भी जो इमैनुअल मैक्रोन है उनकी पॉलिसी डिफरेंट है। ये भी आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के साथ एक इलाका है, एक इलाका, वो आप गूगल पे देख सकते हैं, वहां का प्रिंस है इमैनुअल मैक्रोन, वो प्रिंस है पहले ही, यानी सदर बनने से पहले प्रिंस है। तो उसने और इटली ने बहुत जबरदस्त वजीर आजम है, यानी इटली की मेलोनी सोनी भी हैं और बात भी अच्छी करती हैं। इन्होंने कहा है कि हम जी अमरीकी जो जहाज हैं और वो जो लदे हुए असले से, उनको हम यहां से अपने मुल्कों से नहीं गुजरने देंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा कि 86 साला जो इत्तेहाद था वो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पे फातह पढ़ ली है। अब अगली खबर बुरी है, मकामी खबर है, पाकिस्तान की खबर है। एलपीजी की कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा हो गया है एलपीजी में। जस्ट इमेजिन। क्यों? क्योंकि कतर को डेंट पड़ा है एलपीजी की बरामद में। वैसे भी आज एक जंग ने सर्वे शाया किया है, आप अंदाजा करें यहां से। उन्होंने कहा है कि ईरान की जंग के बाद ओबनाए हुर्मुज का या बाबुल मंदब पे जो हुतीज हैं उनकी धमकियों के बाद दुनिया के 85 मुल्कों में तेल की कीमत बढ़ी है। 85 मुल्कों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी है। इनको माल चाहिए, इनको हर हाल में माल चाहिए, इनको कफन चाहिए। कफन चोर हैं ये, कफन बेच डालें। इंडिया ने क्या किया यहां रिपोर्ट में है, आप जंग में देख सकते हैं, जंग आज वाले जंग में देख सकते हैं, क्योंकि मैं खबरें वहां से लेता हूं जो हुकूमत के हामी हैं, उनसे खबरें लेता हूं। ये जंग की सुर्खी है। 85 मुल्कों में कीमत बढ़ी, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ी, और सबसे ज्यादा मुस्तहकम कीमतें कहां पे रही भला? इंडिया में। जमहूरियत जिंदाबाद। पेट्रोल पे 13 रुपए टैक्स था, उन्होंने 10 रुपए कम कर दिए, 3 रुपए टैक्स रह गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद डीजल पे 10 रुपए टैक्स था, 10 का 10 वापस ले लिया उन्होंने। इसको जमहूरियत कहते हैं। 30 से ज्यादा रियासतों के किसी वजीर आला के पास 11 अरब का जहाज नहीं है, किसी सर्विसेज चीफ के पास, सरकारी मुलाजिम के पास 20 अरब का जहाज नहीं है। ये पता नहीं कहां से आया मुल्क, ये लोग कहां से आए हैं, ये हुक्मरान कहां से आए हैं। बहरहाल सबसे मुस्तहकम कीमतें जो हैं वो इंडिया में रही हैं। 2009 में मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान से। मैंने आपको बताया कि मैंने इमरान खान के साथ उस वक्त डंडे खाए जब इमरान खान की पार्टी के साथ शारा दस्तूर पे 26 लोग थे। उन 26 लोगों में मैं भी शामिल था, मैं भी। और मैं खान साहब की लेफ्ट साइड पे खड़ा था। एक दफा मैंने तस्वीर भी दिखाई थी। वहां मैंने 2 खूबसूरत बंदे देखे अपनी जिंदगी में। पहले नंबर पे कादी हुसैन अहमद, अमीर जमात इस्लामी, सफेद जोड़ा, काली जनाब कैप, काली वेस्ट कोट। उस बंदे के चेहरे पे निगाह नहीं टिकती थी, बहुत खूबसूरत। दूसरे नंबर पे अगर मैंने कोई खूबसूरत शख्स देखा तो वो खान साहब थे। खान साहब के गाल
लाइटें छोड़ रहे थे। यकीन करें, लोग जुलूस की तरफ देख रहा था, आंसू गैस, पुलिस। मैं खान के चेहरे को देख रहा था, यार कितना पप्पू है, कितना सोना है इस उम्र में। तो ये उस वक्त की बात है। ये बात है जब इफ्तिखार चौधरी की तहरीक चल रही थी, अदलिया बहाली की तहरीक चल रही थी। उसमें ये जो फकीर है महमूद नियाजी, अंदाजा करें कि मेरी उम्र कितनी होगी। मैं भी बांका था, मैं भी सजीला था, और मैं क्लीन शेव था जब पुलिस ने मुझे पीछे से मिल मिल के डंडे मारे, आंसू गए। और एक रेडी पर मैंने और साद रफीक ने एक रेडी से रोटी और दाल खाई, रोटी और दाल एक रेडी से। इसको हालांकि मुशर्रफ का दौर था, मुशर्रफ का दौर था, और हमारा नारा था, मुक गया तेरा शो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ, गो मुशर्रफ। आजकल हमारा नारा है कि मुक गया तेरा शो आसिम, गो आसिम, गो आसिम। उस वक्त ये नारा था। जब मेरी मुलाकात हुई, यार ये कितना वली और दरवेश बंदा है, इसने बाजवे के मुस्तकबिल का बता दिया, नवाज शरीफ का बता दिया, जनरल आसिम का बता दिया। इसने क्या कहा, मैं मार्च 2009 को इमरान खान से इस्लामाबाद में मिला तो नवाज शरीफ की गुड्डी बड़ी चढ़ी हुई थी, और इमरान खान की पार्टी 2008 के इलेक्शन का बायकॉट करने की वजह से तबाह हो चुकी थी। पहले सब ने मिलकर बायकॉट किया इलेक्शन का, आपको याद होगा, एपीडीएम बनी थी, एपीडीएम, ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट, एपीडीएम। इन्होंने बायकॉट कर दिया, सब ने, नवाज शरीफ, बेनजीर, इमरान खान, जमात इस्लामी, सब ने। लेकिन अमेरिका का डंडा आ गया नवाज शरीफ और बेनजीर को कि इलेक्शन लड़ो। नेग्रो पोंटे और रिचर्ड बाउचर डंडा चढ़ गया। खान और काजी साहब अपनी बात पे डटे रहे। खान ने भी बायकॉट किया, काजी साहब ने भी बायकॉट किया, जमात इस्लामी ने। ये इलेक्शन लड़ पड़े, और खान बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड थे, गुस्से में थे कि फिर धोखा दिया है। क्या कहा खान ने, पार्टी की वजह से तबाह हो चुकी थी। ये बायकॉट नवाज शरीफ ने करवाया था, खान को धोखा देकर उसने और बेनजीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ लिया था। नवाज शरीफ से धोखा खाकर खान बहुत रंजीदा था, डिप्रेस था, और अपने आप को हौसला दे रहा था। खान ने मुझे देख लिया, खान ने मुझे कहा, पुरानी बात है ना, देख लेना, ये एक दिन जलील होगा, क्योंकि झूठा और मक्कार आदमी है, एक दिन लोगों को पता चल जाएगा। डॉट कनेक्टिंग करें, 2009, 2026, डॉक्टर जास्मिन राशिद, एनआरओ, फॉर्म 47, ये कब कहा खान ने, 2009 में। और क्या कहा, एक दिन लोगों को पता चल जाएगा कि ये झूठा और मक्कार शख्स है। फिर ऐसा ही हुआ, नवाज शरीफ का लोगों को पता चल गया, और वो जलीलो रुस्वा हुआ। जो आज इक्तदार पर काबिज हैं, वो नवाज शरीफ से ज्यादा झूठे और फरेबी हैं। उनका अंजाम आप खुद सोच लें। बाजवा, नदीम अंजुम जुनैद सफदर की शादी पे टेंट लगा रहा था। बाद लोग कहते हैं प्लेटें भी साफ की हैं, बाद लोग कहते हैं 10-10 की वेलें भी पकड़ रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी ISI इतना खानदानी गुलाम और नौकर हो गया शरीफ खानदान का। और इसने बड़क मारी थी कि हमारी मर्जी के बगैर न कोई मुल्क से जा सकता है, न कोई मुल्क से आ सकता है। अर्श शरीफ के जनाजे पर इसने कहा था। ये अब उधर कमी वाला करता है शरीफों का, जो खुद कमी है उनका कमी है। और इनका क्या होगा, इनके लिए फितरत कानून तब्दील कर लेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर खान ने कहा है, खान जिसके बारे में कह दे, पता नहीं वली है, दरवेश है, फकीर है,
अल्लाह को उसकी कौन सी अदा पसंद है मुझे समझ नहीं आती। यकीन करें, यकीन करें। ये उसने कहा और फिर हुआ, आपने देखा, और आगे भी आप जो है वो देख लेंगे कि इनके साथ क्या होता है। उसके बाद जब हम अगली खबर पे चलते हैं तो अगली खबर ये है कि हुकूमत ने जो है वो 100 रुपए पेट्रोल और 50 रुपए डीजल, ये क्या है, लेवी है, इसमें इजाफे का फैसला कर लिया है। 100 रुपए पेट्रोल पे ले रही है फी लीटर मोटरसाइकिल, चिंची, बाइक। या मैं अक्सर कहता हूं ना तो मेरे व्यूअर्स माइंड करते हैं, भाड़ खाना, भाड़ खाना इसको कहते हैं। इसको जमा करो बाइकिया वाले बारिश में, गर्मी में, सर्दी में उनसे 100 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। सुजुकी वाले, मोटरसाइकिल वाले, बेटियों को कॉलेज छोड़ने वाले, बेटियों को कॉलेज से लेने वाले, बेटियों को यूनिवर्सिटियां छोड़ने वाले, उनसे 100 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। और डीजल, सब्जी मंडी पे जो गाड़ियां चलती हैं, जो आलू ढोती हैं, जो प्याज ढोती हैं, उनसे 50 रुपए फी लीटर ले रहे हैं। अब सुना है कि आईएमएफ, एक मुझे इन लांटियों की समझ नहीं आती कि आईएमएफ जो है ना कह रहा है, आईएमएफ को और कुछ नजर नहीं आता क्योंकि उनके एजेंट हैं, क्योंकि आईएमएफ के एजेंट हैं, और एक दिन इसी आईएमएफ के चक्कर में अपना सब कुछ दे देंगे, शायद न्यूक्स भी दे दें कि अब तो हमारे पास बचा कुछ नहीं है, ये है तो बम पहने सार को लिए चाह खड़ो, ये भी हो सकता है। इनसे किस बात की बेईद है? ये कोई इनका मुल्क है? ये तो 24 करोड़ कीड़े मकोड़ों का मुल्क है, कीड़े मकोड़ों का। ये उनका मुल्क है जिसके पहले 2 आर्मी चीफ सुबह भी बताया कि अंग्रेज थे। इन्होंने खिलाफत खत्म करने के लिए तुर्की में उस्मानियों की टांगें तोड़ दी। जो लोग खिलाफत के हक में थे उनकी टांगें तोड़ दी, उनकी कमर पे इन्होंने निशान छोड़ दिए मार मार के। ये वो फौज है, उसकी बाकियात है। आप इनसे जो है ना, यानी तुर्की ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, तुर्की ने, ठीक हो गया, यूएई ने तस्लीम किया हुआ है, मिस्र के अनवर सादात ने तस्लीम किया और अपने फौजियों का निशाना बना, उर्दन ने कबूल किया हुआ है, उर्दन ने। अब हम आपके हमने कबूल नहीं किया तो हम गजा पीस बोर्ड में शामिल हैं, गजा पीस बोर्ड में। अब ये आपने मुलाहिजा करना है, पाकिस्तानी या मुसलमान हुक्मरानों की मिसाल उस जमाल नामी यजीदी फौजी की है। यजीद की फौज में एक जमाल नाम का लश्करी था, फौजी था, जो जंग खत्म होने के बाद लूट मार भी कर रहा था और धाड़े मार कर रो रहा था। लाशों की लूट मार, खेमों की लूट मार, और साथ धाड़े मार के रो रहा था। किसी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, सिसकियां भरी कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, खानदान लुट गया और अब लूट मार चल रही है। ये कहा। उस शख्स ने हैरत से कहा, अगर तुम्हें उनके मरने का और मर्तबे का इल्म है तो लूट मार क्यों कर रहे हो? इस्लामी हुक्मरान, उसने लूट मार करते हुए जवाब दिया, अगर मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूट लेगा। बाजवा नहीं होगा तो आसिफ मुनीर होगा, नवाज शरीफ नहीं होगा तो जरदारी होगा, जरदारी नहीं होगा तो कौमी हुकूमत होगी, कोई तो लूटेगा 78 साल से, यानी कोई और लूट लेगा जी। इस्लामी हुक्मरान गुज़िश्ता कई सालों से गजा और ईरान पर जारी बमबारी के खिलाफ बात कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि अगर इजराइल इतना जालिम है तो तुम उसे तस्लीम क्यों कर रहे हो? कई इस्लामी ममालिक उससे अरबों का कारोबार क्यों कर रहे हैं? तो इस्लामी हुक्मरानों ने जवाब दिया, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, क्या हम कर रहे हैं?
यूएई कर रहा है, पाकिस्तान गजब पीस बोर्ड, अगर हम शामिल नहीं हुए तो कोई और जो है वो जो है ना कर लेगा। अब अगर आए पाकिस्तान की जानिब, पाकिस्तान को तकसीम हिंद के वक्त जो फौज मिली वो सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े करने में और मुसलमानों के कत्लेआम में बराबर की शरीक थी। जो बरसगीर के फौजी थे वो वाले। जनरल ज़ियाउल हक ने ब्लैक सितंबर को 26,000 फलस्तीनियों को शहीद किया उर्दन में शाह हुसैन के हुक्म पर। इसको अभी भी फलस्तीनी ब्लैक सितंबर कहते हैं। और कितने? 26,000। उर्दन, शाह हुसैन, इस अब्दुल्ला का बाप जो अभी बादशाह है। और यहां तक किताबों में लिखा है कि जब ब्रिगेडियर था ज़ियाउल हक, ब्रिगेडियर, उस वक्त शाह हुसैन ने उसको रिकमेंड किया था चीफ के लिए। ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल। उस वक्त शाह हुसैन ने, कहते हैं जी हाँ मेरिट है, हर तरफ मेरिट है, जरा सारे चीफों को निकालें कौन मेरिट पे है। ये कोई भी नहीं चाहता था जनरल आसिम आर्मी, पीडीएम भी नहीं चाहती थी, पीटीआई भी नहीं चाहती थी, भाजपा भी नहीं चाहता था। दो बंदे चाहते थे, एक नवाज शरीफ और एक उसकी बेटी, चीफ बन गया। शाह हुसैन ने उस वक्त ज़ियाउल हक के बारे में कहा कि इसने चीफ बनना है, इसको चीफ बनाना है, और वो चीफ बना ब्लैक सितंबर। क्यों? क्योंकि भुट्टो ने फौजियों के साथ मिलकर वो कुछ किया जो अब हो रहा है। डॉट कनेक्टिंग करें। भुट्टो ने जर्नैलों के साथ मिलकर, बाद में उसने अपना किबला दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ किया जो अब हो रहा है। अब अभी भी उसकी पार्टी उसमें शामिल है, नून लीग शामिल है। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? भुट्टो और जर्नैलों के गठजोड़ का रिजल्ट क्या निकला? वो बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है। कभी केपी के देखें, बलोचिस्तान देखें, आपके सामने। भुट्टो पहले ये तजर्बा कर चुका है। बहरहाल जी, अभी मैं पाकिस्तानियों के कत्लेआम को मेंशन ही नहीं कर रहा, जो पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ है। तो आप क्या कहते हैं? अगर आलमी सियासत की समझ बूझ ना हो तो इस पर कमेंट भी नहीं करते। यानी अगर आपको समझ बूझ नहीं है ना, ये सारा चक्कर क्या चल रहा है, किसने चलाया है, किस तरह चलाया है, तो फिर उस पर कमेंट करते हुए मोहतात रहते हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी सियासत एक होती है सामने, जो हर किसी को नजर आ रही है, इस्लामाबाद में ये हो रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक होती है पर्दे के पीछे, जो फिल्म होती है ना, फिल्म आप तो पर्दे पे देख रहे होते हैं, असल काम पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जो चला रहा होता है प्रोजेक्टर को, वो आपको दिखा रहा होता है फिल्म। इधर असल काम पीछे होता है, जिसे अरशद शरीफ ने लॉक डोर्स कहा था, बिहाइंड दी क्लोज डोर्स। बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ हो रहा होता है, बंद दरवाजों के पीछे असल में वो होता है। और उसने पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि वो 8-10 लोग मिलके फैसला करते हैं। 25 करोड़ के तकदीरों का वो फैसला कर देते हैं। उसमें कोई अवामी नुमाइंदा नहीं होता। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये बड़े लोग बिहाइंड दी डोर्स या क्लोज डोर्स के पीछे बैठे हैं, वहां मुझे बिठाएं। मैं मिसाल देता हूं, आप में से किसी को बिठाएं, मैं कोई इतनी बड़ी बलाऊ, मैं वहां पे बोलूंगा कि खुदा तो आपको गौरव करे, 322 का पेट्रोल कर रहे हो, 322 का पेट्रोल पे 100 रुपए लेवी ले रहे हो, डीजल पे 50 रुपए लेवी ले रहे हो। खुदा तुम्हें गरक करे, लेवी को जीरो करो। मसलन 322 का आप पेट्रोल ले रहे हैं, ठीक है। अभी 100 रुपए, अगर जिस तरह इंडिया ने किया, अगर 100 रुपए लेवी खत्म कर दी जाए तो कितने का पेट्रोल आएगा? 222 का। सिंपल। डीजल पे खत्म कर दें तो। लेकिन मैंने आपको बताया, न सरमायाकारी, न जहां पे कोई कारोबार हो रहा है। लोग पॉलिसियों की वजह से मुल्क छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। जो कंपनियां हैं, कमाई का जरिया क्या है? यानी अवाम को तनख्वाह देते हैं ना, अवाम को दिहाड़ी देते हैं, फिर अवाम के जेब से निकालते हैं। यानी बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा,
डीजल महंगा। ये अब आप देखें सोलर पे 18% जीएसटी लग रहा है सोलर पे। ये आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ ने, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आईएमएफ की कमाई वो पॉर्न स्टार्स की होती है। आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका है। अमेरिका पॉर्न स्टार्स की जो टैक्स है उसमें शामिल है, उसमें पॉर्न मूवीज की कमाई शामिल है, उनमें कैसीनोज की कमाई शामिल है, उसमें डलास की जुआ खानों की कमाई शामिल है, उसमें लॉस वेगस के चक्रों की कमाई शामिल है। वो हमें मिलती है, हमें ये बड़े खुश होते हैं, ये घुंघरू तोड़ते हैं। यानी व्यूअर्स कहते हैं कि आप कौन सी बातें हैं ये, इनमें कौन सी ऐसी बात है जो सुपर ह्यूमन है, जो आपकी समझ में नहीं आती? कौन सी ऐसी बात है? एक मेरे व्यूअर ने लिखा, मोहतरम ने, क्या बार बार एक बात करते हैं, तो क्या बात करें? नाचूं, लाल कोर की तरह नाचूं, जहां पे शर्ट उतार दूं, क्या करूं? ये जो कुछ मैंने कहा ये नहीं हो रहा आपके मुल्क में। आज का जंग, ये जीएसटी 18% सोलर पे, आज का जंग निकाल लें, वैसे नहीं लेते आप, ई पेपर निकाल लें, गूगल पे निकाल लें, जंग के पहले पेज पे 18%। जंग के पहले पेज पे है कि अप्रैल में, अभी मैं आपको बताता हूं, अप्रैल में 14.37 अरब का टारगेट रखा गया है बिजली में, तो ये अवाम से लिया जाएगा 14.37 अरब फिक्स चार्जेस। जंग पे है, क्या मैं आपको क्या बताऊं? ये यहां बाहर निकले तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये बताऊं कि जो है ना वो इमरान खान कल बाहर आ जाएंगे और वजीर आजम बन जाएंगे? कोई इक्तदार छोड़ता है? कोई हुक्मरानी छोड़ता है? क्या बताऊं आपको कि आप बार बार ईरान की जंग जो महीना हुई है, लगी हुई है, तो हमने ईरान की जंग पे बात नहीं करनी? पाकिस्तान जिन मसाइल का सामना कर रहा है उस पर बात नहीं करनी? हाँ, ये एक अलहदा बात है कि मेरी शक्ल आपको पसंद नहीं है, तो वो एक अलहदा बात है, वरना यही किसी भी आप व्लॉगर को सुन ले कि वो इनको टच करता है या नहीं करता। हाँ, अंदाज अपना अपना है। इमरान खान से एक आखिरी गुजारिश ये है कि वो आखिरी यू टर्न ले लें, और वो यू टर्न ये है कि पार्टी अलीमा खान को दे दें, इन सब लुगड़ों को और लफंटरों को फारिग करें। हमारी पंजाबी में कहते हैं, सेक उठे आना है जिथे भा बल्ले, जहां पे आग जलती है ना वहां पे गर्मी महसूस होती है। तो जो कुछ इमरान खान की बहनें इमरान के लिए कर सकती हैं वो ये नहीं कर सकते। ये कंप्रोमाइज्ड, ये डरपोक, ये बूट पालशिए, इनके मुंह को खून लग गया है, इनको ओहदे लग गए हैं, इनको कुर्सियां लग गई हैं। तो इमरान खान एक यू टर्न लें और पार्टी अलीमा खान के हवाले कर दें, ताकि वो एक भरपूर तहरीक चला सकें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।